Hello student, today we are going to start chapter number 3rd. As you know, we have already completed 2 chapters of this book. First chapter, as you know, A Letter to God, and second chapter, Nelson Mandela. And today we are going to start chapter number 3rd, 2 stories about flying. There are 2 parts in chapter number 3rd. In first part, we have read about his first flight, and in this second part, we will read about black aeroplane. So today, I am going to read Black Aeroplane, and its writer is Frederick Forsyth. Its writer is Frederick Forsyth. Now I am going to read, and I hope you will all open your book and see in your book. The moon was coming up. The moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch and 1:30 in the morning. I should call Paris control soon, I thought as I looked down past the nose of the aeroplane. I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS-088 here. Can you hear me? I am on my way to England. Over. The voice from the radio answered me immediately. DS-088, I can hear you. You out to turn 12 degrees west now. DS-088, over. I checked the map and compass, switched over to my second last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees towards England. I will be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. Storm clouds, they were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. I knew I could not fly up and over them, and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. I will take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. Inside the cloud, everything was suddenly black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I could not believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. I would not work. It would not work. The other instruments were suddenly dead. I tried to radio, Paris control, can you hear me? There was no answer. The radio was dead too. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in the storm, then in the black cloud quite near me. I saw another aeroplane had no light on its wing, but I could see it flying next to me. Through the storm, I could see the pilot's face turned towards me.
I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. Follow me, he was saying, follow me. He knows that I am lost. I thought he is trying to help me. He turned the aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. Now there was only enough fuel in the old Dakota last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again. But then he started to go down and followed through the storm. Suddenly I came out of the cloud and saw 2 long straight lines of the light in front of me. It was my friend in the black aeroplane. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. I landed and was not sorry for walk away for the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in control center where I was and who other the pilots was. I wanted to say thank you. She looked at me very strangely and then laughed. Another aeroplane? Up there in the storm? No, other aeroplane were flying tonight. Yours was the only one I could see in the radar. Let's explain the chapter. The moon was coming up in the east. Behind me. मेरे पीछे जो प्लेन की बात हो रही है, एरोप्लेन की बात हो रही है, कोई पायलट होगा, वो पायलट एरोप्लेन चला रहा है और कह रहा है द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, मेरे पीछे, यानी ईस्ट से किस तरफ जा रहा है? वेस्ट की तरफ जा रहा है। जो मून है वो उसके पीछे यानी कि ईस्ट की तरफ, और वो कहाँ की तरफ जा रहा है? वेस्ट की तरफ जा रहा है, निकल आया है। मून वॉज कमिंग अप एंड स्टार वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और तारे जो है बिल्कुल साफ आकाश में टिमटिमा रहे थे मेरे ऊपर। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, और आकाश में एक भी बादल नहीं थे। देयर वॉज नो क्लाउड, कोई भी बादल आकाश में नहीं थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और सोते हुए लोगों के शहरों के ऊपर से। आई वॉज अलोन हाई अप, मैं अकेला था, अकेला वो प्लेन चला रहा है सोते हुए लोगों के ऊपर से, हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और गाँव के शहरों के ऊपर से गुज़र रहा है, देशों के ऊपर से गुज़र रहा है। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस, किसके ऊपर से गुज़र रहा है? फ्रांस के ऊपर से गुज़र रहा है। बैक टू इंग्लैंड, कहाँ जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है। फ्रांस के ऊपर से गुज़र रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग माई फैमिली। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, तो कह रहा है मैं खोया हुआ था अपने हॉलीडे पर, अपने हॉलीडे के लिए मैं खोया हुआ था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और मैं देख रहा था और मैं साथ में होना चाहता था अपने परिवार के, कि मैं उनके साथ छुट्टियां बिताऊं। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, अपने परिवार के साथ छुट्टियों को बिताना चाहता था, इंग्लैंड वापस जाना चाहता था। अभी कहाँ से गुजर रहा था? फ्रांस के ऊपर से। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, रात के कह लें या सुबह के कह लें, 1:30 बजे हुए थे। 1:30 एट नाइट और 1:30 इन द मॉर्निंग। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मैंने सोचा मुझे पेरिस कंट्रोल से थोड़ी बात करनी चाहिए, ऊपर से गुजर रहा हूँ।
I thought as I looked down past the nose of the aeroplane, जब मैंने एरोप्लेन की नोज़ पर देखा, पॉइंट जो होता है, I saw the lights of big city in front of me, तो मुझे उस बड़े शहर की, फ्रांस के ऊपर से गुजर रहा है, पेरिस जैसे बड़े शहर की लाइट्स मुझे दिखाई देती है। I switched on the radio and said, मैंने तुरंत अपने रेडियो को ओपन किया, खोला और कहा, पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS-088 here, can you hear me? पेरिस कंट्रोल रूम, डेकोटा 088 से मैं बात कर रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर, मैं अपने रास्ते पर हूँ और मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, DS-088 आई कैन हियर यू, एक आवाज़ आती है, रेडियो से वापस रिप्लाई होता है, 088 हम आपको सुन सकते हैं। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, अब तुम्हें पश्चिम की तरफ लगभग 12 डिग्री को में मोड़ना है, अबाउट 12 डिग्री, DS-088 ओवर, 088 डेकोटा 088 से उसने कहा DS-088 आपको 12 डिग्री, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको टर्न करना। आई चेक द मैप एंड कंपास, मैंने मैप को चेक किया, कंपास को देखा, कंपास होता है जिसमें वो जो नीडल होती है वो नॉर्थ की डायरेक्शन आपको बताती है। स्विच्ड ओवर माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, मैप को देखा, कंपास चेक किया और आखिरी जो टैंक बचा हुआ था फ्यूल का, फ्यूल बहुत लगता है एरोप्लेन में, उसको भी ओपन कर दिया। एंड टर्नेड द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टूवर्ड इंग्लैंड, और डेकोटा को मैंने 12 डिग्री टर्न कर दिया इंग्लैंड पहुंचने के लिए, इंग्लैंड जाने के लिए। इनको सिंबल मिलते हैं, सिग्नल मिलते हैं, बहुत सारे सिटी से अब होकर गुजरते हैं, देशों से होकर गुजरते हैं, तो वो बताते हैं कि आपको टर्न करना है, किस दिशा में जाना है, क्योंकि सामने से भी बहुत सारे प्लेन आ रहे होते हैं, तो उस हिसाब से भी इनको इंडिकेशन मिलते रहते हैं। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट, मैंने सोचा कि चलो मैं सुबह तक अपने घर पहुंच जाऊंगा और सुबह का नाश्ता करूंगा अपने परिवार के साथ बैठकर, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बढ़िया सुबह का ताज़ा नाश्ता अपने परिवार के साथ। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब सही चल रहा था। पेरिस से बात हो गई थी कंट्रोल रूम से और मैं 12 डिग्री मोड़कर इंग्लैंड की तरफ आगे बढ़ रहा था। गोइंग वेल, इट वाज एन ईजी फ्लाइट, बड़ी आराम से मैं फ़्लाइट चला रहा था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, और पेरिस भी मुझसे 150 किलोमीटर निकल चुका था पीछे। जब से इसकी बात हुई थी इंग्लैंड के लिए आगे बढ़ रहा है, लगभग 150 किलोमीटर पीछे निकल गया। तो 200-400 किलोमीटर की बात नहीं है, इंग्लैंड से पेरिस जा रहे हैं, हो सकता है 1000 किलोमीटर की बात हो, 800 किलोमीटर की बात हो, 2000 किलोमीटर की बात हो। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड, जब मैंने बादलों को देखा था लगभग 150 किलोमीटर पहले पेरिस के आसपास मैंने उन बादलों को देखा था, स्टॉर्म क्लाउड, और कैसे थे, तूफ़ानी बादल थे, वहाँ देखा था। दे वर ह्यूज, बहुत बड़े बड़े बादल थे, खतरनाक थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, इतने बड़े बड़े बादल, इतने बड़े बड़े बादल जो कि माउंटेन की तरह दिखाई दे रहे थे, मेरे सामने अड़े हुए थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, पूरे आसमान में फैले हुए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि मैं उड़ा नहीं पाऊँगा, मैं जानता था उससे मैं गुजार नहीं पाऊँगा टू द नॉर्थ और साउथ, यानी इतना तेल मेरे पास नहीं है कि मैं नॉर्थ से घुमा कर ले जाऊँ या साउथ से घुमा कर ले जाऊँ और उन स्टॉर्म को पार कर लूँ। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा मुझे पेरिस वापस जाना चाहिए, पेरिस चला जाऊँ, मामला शांत हो जाए, माहौल शांत हो जाए, स्टॉर्म ठंडा हो जाए, तो मैं फिर वापस अपनी उड़ान भरूँ। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे जल्द ही घर भी पहुँचना था, याद आ रही थी घर वालों की, हॉलीडे उनके साथ बिताना था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, और वो मुझे वो नाश्ता करना था, वो नाश्ता जो मुझे अपने परिवार के साथ मिल सकता था। आई विल टेक द रिस्क, तो मैंने सोचा चलो रिस्क लिया जाए।
आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डिकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। मैंने सोचा और मैंने डायरेक्ट अपनी फ्लाइट को उस तूफान में उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। और बादलों के अंदर अचानक से सब ब्लैक हो गया, बिल्कुल। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर देखना असंभव हो गया, बाहर कोई नहीं देख सकता था। यानी कि जब चारों तरफ बादल ही बादल है, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, रात का समय है, कुछ समझ नहीं आ रहा। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। जो पुराना एरोप्लेन जो उड़ रहा था और अचानक से क्या करने लगा, जंप, ऊपर नीचे ट्विस्टेड होने लगा, यहाँ वहाँ हिलने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास। जब मैंने कंपास की तरफ देखा, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज। तो मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ, ट्रस्ट नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। जो कंपास था वो बिल्कुल गोल गोल घूम रहा है, जबकि कंपास की जो निडल होती है वो नॉर्थ की दिशा बताती है आपको, लेकिन कंपास यहाँ पे क्या हो रहा था, राउंड एंड राउंड एंड राउंड। इट वॉज डेड। कंपास पूरी तरह से डेड हो चुका था। इट वुड नॉट वर्क। और ये काम नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट वर सडनली डेड टू। और दूसरे इंस्ट्रूमेंट भी अचानक से डेड हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो। जब मैंने रेडियो को ट्राई करना चाहा, पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी। मैंने बात करना चाहिए रेडियो से, पेरिस कंट्रोल रूम, क्या तुम मुझे सुन सकते हो, क्या कोई आवाज़ तुम्हारे तक आ रही है। देयर वाज नो आंसर। तो वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वाज डेड टू। यानी रेडियो भी डेड हो चुका था। आई हैड नो रेडियो नो कंपास। मेरे पास अब कोई रेडियो नहीं बचा था, कंपास काम नहीं कर रहा था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज। और ना ही मैं ये देख सकता था मैं कहाँ पर था, मैं कहाँ फंस गया था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। मैं पूरी तरह से तूफान में खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी। और मैं देख सकता था कि बड़े बड़े काले बादल मेरे पास थे। आई सा अनदर एरोप्लेन। तो मैंने वहीं पर एक और एरोप्लेन को देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स। उसके परों पर, जबकि विंग्स पे लाइट लगी होती है कि कहीं आप टकरा ना जाओ किसी चीज़ से, तो उसकी विंग्स पे कोई लाइट नहीं लगी हुई थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन मैं देख सकता था वो मेरे जस्ट बगल से उड़ रहा था, उस तूफान में वो मेरे जस्ट बगल से उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस। मैं पायलट के चेहरे को भी देख सकता था, इतने करीब था वो प्लेन। टर्नेड टूवर्ड्स मी, जो मेरी तरफ बिल्कुल मुड़ा चला आ रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मैं इस ब्लैक स्काई में, इस काले आसमान में दूसरे एरोप्लेन को देखकर बड़ा खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड। उसने अपना एक हाथ हिलाया और वेव किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, जैसे कि वो मुझसे कह रहा हो कि मेरे पीछे आइए, मेरे पीछे आइए। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट। वो जानता था कि मैं खो गया हूँ, मैंने सोचा। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। उसने मुझे जो है, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, मेरी मदद करने की कोशिश की। ही टर्नड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। और उसने अब धीरे से अपना एरोप्लेन नॉर्थ की तरफ मोड़ दिया। इन फ्रंट ऑफ माई डिकोटा, मेरे डिकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मैं आसानी से उसका पीछा कर सकूं और उसके पीछे पीछे अपना रास्ता ढूंढ सकूं। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। मैं भी उस एरोप्लेन के पीछे पीछे जाने लगा इस तरह से, जिस तरह से कोई आज्ञा के आदि शिष्य जो है अपने टीचर का कहना मानता है। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड। लगभग आधे घंटे तक वो एरोप्लेन मेरे आगे आगे रहा और मैं घने बादलों में उसको देख सकता था और वो वहीं पर था। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डिकोटा लास्ट टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स। अब मेरे प्लेन में सिर्फ इतना ही तेल बचा था कि मैं 5 या 10 मिनट ही प्लेन को उड़ा सकता था, बाकी उसमें फ्यूल नहीं बचा था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन। मुझे फिर से बहुत डर महसूस होने लगा। डर इसलिए महसूस होने लगा क्योंकि उसमें तेल नहीं बचा हुआ था। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। और उसके बाद वो थोड़ा धीरे धीरे
तूफान में आगे बढ़ा और धीरे धीरे नीचे जाने लगा। आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, ही स्टार्टेड टू गो डाउन। धीरे धीरे नीचे उतरने लगा और मैं भी उसका पीछा करने लगा। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड एंड saw 2 long straight line of light in front of me। जब मैं बाहर आया, तूफान से बाहर आया, बाहर निकल कर आया, तो मैंने क्या देखा? सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक से मैं बादलों के बाहर आ गया। एंड saw 2 long straight lines, और 2 मुझे लंबी वो रनवे जिसको बोलते हैं, जिस पे वो प्लेन उतारा जाता है, वो लाइंस लाइट इन फ्रंट ऑफ मी जलती हुई जगमग जगमग वो रात में वो लाइट्स मुझे दिखने लगी। इट वाज अ रनवे, और ये क्या था? रनवे था जहाँ एक एरोप्लेन को उतारा जाता है। एन एयरपोर्ट आई वाज सेफ, एक एयरपोर्ट मुझे मिल गया, पोर्ट मिल गया, और मैं बिल्कुल सुरक्षित था। यानी फ्यूल बिल्कुल लास्ट था, ख़त्म होने ही वाला था, और जस्ट उसके पहले ही इसकी लैंडिंग हो गई। आई टर्नेड टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। तुरंत मैंने यहाँ वहाँ चारों तरफ अपने दोस्त को देखा जिसने मुझे लैंड कराया था सेफली। बट द स्काई वाज एम्प्टी, लेकिन आकाश में कोई प्लेन नहीं था, आसमान बिल्कुल साफ था। देयर वाज नथिंग देयर, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वाज गॉन, और वो काला जो प्लेन था वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो प्लेन मुझे कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया, कहीं भी वो मुझे नज़र ना आया। आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड Dakota नियर द कंट्रोल टावर। मैंने अपने प्लेन को, आई लैंडेड, ज़मीन पर उतार लिया, एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड Dakota, और ओल्ड Dakota से बाहर निकल के कंट्रोल टावर की तरफ गया। कंट्रोल टावर से सब कुछ पता चल जाता है, कितने प्लेन थे, कितनी देर उड़े, कहाँ कहाँ के लिए फ़्लाइट्स थी, वो सब कंट्रोल टावर से पता चलता है। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर, मैं सीधा कंट्रोल सेंटर गया और वहाँ पर बैठी एक महिला से मैंने पूछा वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज, मैं कहाँ पर हूँ और दूसरा पायलट कहाँ था, कौन था जिसने मेरी मदद की थी। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़ी विचित्रता से मेरी तरफ देखा। एंड देन लाफ्ड, और वो हंसने लगी। अनदर एरोप्लेन, और उसने कहा दूसरा एरोप्लेन। अब देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में कोई दूसरा एरोप्लेन था। नो अदर एरोप्लेन वर फ्लाइंग टुनाइट, आज की रात तो कोई दूसरी फ्लाइट है ही नहीं, सिर्फ योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी इन द रडार। रडार में तो मुझे सिर्फ तुम्हारा प्लेन ही दिखाई दिया, और तुम्हारी ही फ़्लाइट एक आखिरी फ़्लाइट थी जो कि आज रात आना थी, उतरना थी, लैंड होना थी। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक। तो कौन था जिसने मेरी मदद इस तूफ़ान में की, बिना कंपास के, बिना रेडियो के, बिना फ्यूल के? कौन ऐसा था जिसने मेरी मदद की? हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट। तो कौन सा ऐसा पायलट था, कौन सा ऐसा प्लेन था जो बिना लाइट्स के, बिना इंडिकेशन के उस तूफ़ान में उड़ा रहा था, और वो पायलट कौन था जिसने मेरी मदद की थी? इस सवाल का उसे जवाब न मिला। तो ब्लैक एरोप्लेन में आपने देखा कि किस तरह से एक प्लेन जो है तूफ़ान की वजह से तूफ़ान में फंस जाता है और निकलने का उसका कोई चांस नहीं होता है। तो वैसे में उसको एक हेल्प होती है कि अननोन एक स्ट्रेंज प्लेन के ज़रिए, और वो प्लेन उसकी मदद करता है और उसे तूफ़ान से बाहर निकाल लेता है। उसका कंपास भी काम नहीं कर रहा था, उसका रेडियो भी काम नहीं कर रहा था, उसका फ्यूल भी ख़त्म होने वाला था। बिल्कुल 5 और 10 मिनट की फ़्लाइट ही वो उड़ा सकता था, फिर भी वो जो है उससे बचकर बाहर निकल आया, और वो उसको थैंक बोलना चाहता था। लेकिन जब वो बाहर आया तो कंट्रोल जो टावर था वहाँ पर बैठी महिला ने उससे बताया कि आज रडार में आपके प्लेन के अलावा कोई दूसरा प्लेन नहीं था। तो यह बात सुनकर बड़ा स्ट्रेंज फील होता है, समझ आता है। दैट्स एंड ऑफ द चैप्टर टुडे एज वेल एज लेक्चर टुडे।
I hope you like the video very much. If you have any problem, comment in the comment box. If you have serious and the major problem, you can come to school to discuss this topic with us and other topic to the other teacher as well. Thank you.